So no issues. I guess there's some issue with the YouTube. So I'm doing the session. I'll put up the recording at the later stage. So first thing first is, what problems are you facing with PSIR in general? What has been the experience? I just want to see what your issues are so that we would be able to work upon that. Because teaching in silos and isolation doesn't work. And I'll give you notes, I'll give you handouts, I'll give you printouts. The problem remains the same. There are ample of notes in the market. Okay. So what are you looking for, and what exactly is your problem with this answer writing and examination? Interlinking. Okay. The most important problem which everyone faces is that these days they're asking the questions from both the sections, or intersectional questions are there. So we were presuming that NAM would be asked somewhere in 2B, they are asking in 2A, or we were presuming that some question has to be asked in 1A, it is being asked in 1B, it is being asked in 2A. एक ये problem है. Another problem is that how to utilize the areas of one, or the topics of one area into the another area. एक ये बड़ा important issue हो जाता है कि let us say, अब I'll just give an example that we devote a lot of time in doing WPT, लेकिन फिर बाद में स्टूडेंट्स ये पूछते हैं इसका यूज क्या है. After taking 30 days classes on WPT, we are not able to use it. So this is where the answer comes, that we should use 1A as well, we should use WPT as well in our answers. Let us say there is a question on executive. ठीक है, executive के functioning पे question है. So can't we give the example of philosopher king, that, or there is a question on the environmental problem of in 1A B, sorry, social movements का कोई question है, environmental problems का कोई question है, तो वहाँ पे भी we can use such things कि if there would have been a philosopher king, or we can have a philosopher king approach through the government where we can solve these problems. ठीक है. So this is where we need to understand that interlinkage remains one of the most important key area of this examination, and this is where we are failing. We are not able to use the interlinkage concept. एक ये सबसे major issue आता है. Interlinkage के अलावा आ गए इस बार. आज मैं वही डिस्कस करने आया था. हाँ बिल्कुल. तो जबरदस्ती होगा एक हिसाब से हम 1K का पार्ट पूछाएंगे. बिल्कुल. 20 नंबर जैसे इस बार पीआरआई का और इलेक्शन में रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आया था. ठीक है, बिल्कुल है. सर उसमें एक तो 20 नंबर के लिए हम जीएस में तो 5-7 पॉइंट होते हैं, और उसके बाद आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और कंक्लूजन वगैरह वगैरह देके उसमें ठीक ठाक आंसर बना सकते हैं. लेकिन यहाँ पे वो चीज हो नहीं रही, और उसकी वजह से फिर नंबर नहीं आएगा. बिल्कुल. अनदर प्रॉब्लम इज, जैसे इस बार आप देखेंगे ना, सेंसस पे 2 क्वेश्चन आ गए, एंड बोथ द क्वेश्चंस वर अनएक्सपेक्टेड, और दे वर नॉट ऑन द लाइंस ऑफ द पेपर का जो ट्रेंड है. नंबर 1. नंबर 2, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पीआरआई. अब 20 मार्क्स में पीआरआई है, तो कितना कंटेंट इसमें हम लिखे फ्रॉम द स्पेसिफिक पार्ट और कितना लिखे फ्रॉम द जेनरिक पार्ट. ये एक मेजर इशू आता है. जनरल टेंडेंसी ये होती है कि 1B अटेम्प्ट करेंगे तो डिसेंट मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे. मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा. एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हाउ टू चूज दैट विच एरिया इज मोर स्कोरिंग. देखो ये कई बार ऐसा होता है, ये हमें खुद नहीं पता होता. आई ऑलवेज से दैट बिकॉज वी हैव टू डू all the 4 sections, we should do all the 4 sections, and depending upon the nature of questions we should decide then and there. जैसे इस बार प्रीलिम से पहले भी ना मैंने स्टूडेंट से कहा था कि पेपर जैसे मुझे लग रहा था कि हमारे प्रोग्राम में भी कि देयर वुड बी अ लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम जीपीटी, क्योंकि सबको आदत हो गई चैट जीपीटी की, और व्हेन समवन इज वर्किंग फॉर यू व्हाई शुड यू वर्क. तो टीचर्स ने बोला होगा, या जो क्वेश्चन सेट करने वाले होंगे, कि जाओ जीपीटी से 10 बेस्ट क्वेश्चन मुझे निकाल के दे दो. तो जीपीटी ने 10 बेस्ट क्वेश्चन दे दिए अपनी नॉलेज के हिसाब से. तो मैं इस बार स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया था, मैंने कहा पहले 15 मिनट अगर पेपर नहीं समझ में आए, तुम्हारे बिल्कुल समझ नहीं आए, तो फिर वो किसी के समझ नहीं आ रहा होगा. इस बात का ध्यान रखना, एंड डू नॉट पैनिक. ट्राई टू रिवाइव योरसेल्फ आफ्टर लुकिंग एट द पेपर. थोड़ी देर बाद पेपर समझ में आने लगेगा. कुछ स्टूडेंट्स का यही सजेशन, यही वो आया व्यू पॉइंट कि हाँ थोड़ा टाइम बाद समझ में आया, और जिन स्टूडेंट्स ने होप छोड़ दी थी उनका यही कहना था कि नहीं समझ में आया. तो कुछ ऐसा डर मुझे इस बार मेंस में भी है कि दे वुड बी ड्राफ्टिंग अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस. मतलब 5-5 लाइन के क्वेश्चन वो ड्राफ्ट करके आपको दे देंगे, और जब आप उसको आराम से पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो वही बिहेवियरल अप्रोच पूछा हुआ है, ये तो वही पोस्ट बिहेवियरलिज्म पूछा हुआ है, ये तो वही रियलिज्म पूछा हुआ है. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. तो ये बात आपकी बात से मुझे याद आई. तो अब एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एट विच एरिया इज मोर इंपॉर्टेंट, विच एरिया इज मोर स्कोरिंग. ये हमें ना कई बार एग्जाम के क्वेश्चंस देख के समझ में आता है. तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, वी शुड गो विद अ ओपन अप्रोच. व्हाट वी कैन डू इज, रादर देन कंप्लीटली कटिंग दिस ऑफ, जैसे मार्केट में हमेशा कहा जाता है कि 1A छोड़ दो क्योंकि 1A बहुत ट्रेडिशनल है, मार्क्स नहीं आएंगे.
rather than completing cutting this off, what we can do is we can write the contemporary things over here. We can always write the contemporary approach of that particular idea. जैसे let us say concept is power, let us say concept is justice, or even Rawls theory of justice. If I say कि try to apply Rawls theory of justice in the modern world, डोंट यू थिंक कि आज का जो वर्ल्ड है, जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है? और दिस आइडिया ऑफ जस्टिस रिमेन्स द ओनली आइडिया ऑफ जस्टिस विच प्रोवाइड्स यू वेलफेयरिज्म एट द सेम टाइम विच प्रोवाइड्स यू लिबर्टी. यही एक ऐसा आइडिया जो लिबर्टी और वेलफेयरिज्म दोनों एक साथ दे रहा है. तभी हम कहते हैं ना, रॉल्स इज बोथ अ डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज अ प्रोसीजरल थिंकर. तो अब यहां पे हम ये कर सकते हैं दैट इन दिस, रादर देन राइटिंग अ वेरी ट्रेडिशनल आंसर ओवर हियर, क्योंकि हमें हमेशा से बताया गया कि 1A और 2A में मार्क्स नहीं आते, मार्क्स लेने हैं तो 1B और 2B को अप्रोच करो. लेकिन प्रॉब्लम एग्जाम में जाके ये हो जाती है कि 1B और 2B के क्वेश्चंस इतने ओपन एंडेड हो जाते हैं, इतने जीएस स्टाइल हो जाते हैं कि उसको हम लिखते हैं तो वैसे मार्क्स नहीं आते. तो हम तो दोनों जगह से फंसे. लिख लेंगे एग्जैक्टली यही होता है. अच्छा, पता है व्हाट आई हैव सीन इज, आपकी एक बात से मुझे याद है क्योंकि आई हैव टॉट एट जामिया एज वेल. When it comes to 1A, we have very limited thinkers and scholars. More or less country wide हर यूनिवर्सिटी में वही स्कॉलर्स पढ़ाए जाते हैं, वही थिंकर्स या वही स्कॉलर्स आपको मिलेंगे. 1B का प्रॉब्लम ये, इट इज वेरी वाइड इन नेचर व्हेन इट कम्स टू स्कॉलर्स. एवरी अदर पर्सन ऑन ट्विटर टुडे हैज बिकम अ स्कॉलर ऑफ 1B एंड 2B, है ना. अब नाउ यू आपने हैप्पी मून जैकब रट लिया. अब कहीं कोई किसी इंस्टीट्यूट में थिंक टैंक में बैठा पर्सन, उसने एक रिसर्च पेपर दे दिया इंडिया यूएस रिलेशंस पे, आपने नहीं पढ़ा था, बहुत ही वैसा थिंक टैंक था, बहुत प्रोमिनेंट थिंक टैंक नहीं था, एग्जामिनर ने ये पढ़ा था. अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका वाला स्कॉलर कहाँ गया, ये लेके आओ. तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि योर राइटिंग वर्सेस हिज एक्सपेक्टेशंस, दे आर नॉट मैचिंग. क्योंकि इतना ओपन है ये एरिया, इसे टैप कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. एंड आई नेवर से कि इसे टैप करो, आई से कि जितना कंटेंट है उसे यूटिलाइज करो. कोशिश करते हैं 1A 2A से क्वेश्चंस निकालने की. 1B 2B पे तो आना ही है एट लास्ट, वो तो करना ही है. 1A 2A से जैसे मैं भी बात कह रहा था कि कैसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, तो 1A 2A से हम ये कर सकते हैं कि वी शुड लुक टुवर्ड्स द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ एवरी टॉपिक. इवन हॉब्स हैज अ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस टुडे, इवन मैकियावेलियन थॉट हैज अ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस टुडे. हॉब्स का भी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस आज हम ढूंढ सकते हैं. कैसे ढूंढेंगे हॉब्स को आज की डेट में, कहाँ अप्लाई करोगे? स्टेट नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव बताओ. नेगेटिव तो हॉब्स को हर कोई नेगेटिव देखता, पॉजिटिव क्या है हॉब्स के लिए? ठीक है, और कुछ बेटर? State of nature in context of such social media, that is, it is getting war of all against all, means एनार्की हो गया, वो तो नेगेटिव है ही. पॉजिटिव में है, he was the first person to give the theory of sovereignty, and in the modern systems sovereignty matters. Modern society में sovereignty matters. Number 2, most of the democracies or all of the democracies are functional because of the social contract. वही डेमोक्रेसी जिंदा रही जहां पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है. बाकी सारी डेमोक्रेसीज खत्म हो गई. पाकिस्तान भी आया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं चला. इंडिया का सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन चला. यहाँ फंक्शनल है, वहां डिसफंक्शनल है. सो हॉब्स ने जो प्रेमाइसेस रखी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द सॉवरन सिस्टम, दैट हैज बिकम द बैकबोन ऑफ द स्टेट इन द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस. हॉब्स का वो आइडिया आज मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन बन चुका है. नेगेटिव तो हॉब्स के लिए बहुत है, लेकिन ही हैज द पॉजिटिव साइड एज वेल. He was the first one to give the monistic theory of sovereignty. उसने कहा सिंगल सॉवरन रहेगा. सिंगल सॉवरन मीन्स अ पावरफुल सिस्टम. पावरफुल सिस्टम मीन्स बेनिफिट ऑफ ऑल एंड द राइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अगर सॉवरेनिटी डिवाइड हो जाएगी तो कभी भी सिस्टम फंक्शन नहीं होगा. वी कैन यूज लाइक दिस, है ना. इस तरह से हम हॉब्स को यूज कर सकते हैं. सो दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट 1A के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका बेटर यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, जिसको हम करंट से लिंक करके अच्छे आंसर्स बना सकते हैं. ठीक है. देन व्हेन इट कम्स टू 2A के केस में भी यही है कि ऑल द करंट इवेंट्स फ्रॉम हियर कैन बी यूज्ड ओवर हियर एंड ऑल द थ्योरीज ऑफ हियर कैन बी यूज्ड ओवर हियर. तो ये चीज हमें ध्यान रखना है दैट इफ वी आर राइटिंग 2A, सो वी हैव टू पुट अप द करंट अफेयर्स, एंड इफ वी आर राइटिंग 2B, वी शुड नॉट मिस द थ्योरीज. Even if you are writing about India-Iran relations, you need to tell them that how realism is helping these kinds of relations. You need to tell them that how functionalism is helping these kinds of relations. ठीक है.
तो इस तरह के क्वेश्चंस, आप इस तरह की थ्योरी कीवर्ड्स आपको यहाँ पे यूज करने नेसेसरी हैं. दिस विल मेक योर आंसर बेटर देन अदर्स. नहीं तो फिर वही IR वाला आंसर लगता है, क्योंकि फैक्ट्स तो हर कोई लिख रहा होगा. पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अबाउट जस्ट फैक्ट्स एंड व्हाट इज हैपनिंग, इट इज मोर अबाउट द एप्लीकेशन. इट इज मोर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्रू पॉलिटिकल साइंस और थ्रू दी वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो ये चीज हमेशा हमें करनी है कि अगर हम 2B में आंसर लिख रहे हैं तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन द थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट रिलेशन एज वेल. उसी थियोरिटिकल एस्पेक्ट के थ्रू हम उस रिलेशन को डिफाइन करें. ठीक है. एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आता है कि स्टूडेंट्स आर रशिंग आफ्टर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स, कि हर कोई कहता है स्कॉलर्स कर लो, स्कॉलर्स कर लो. देखो, स्कॉलर्स आर पार्ट एंड पार्सल, और यहाँ पे भी हम जब कल स्टार्ट करेंगे तो वी विल ऑल्सो फोकस ऑन स्कॉलर्स. बट द प्रॉब्लम इज हाउ मच स्कॉलर्स, कितने स्कॉलर्स. मेनी टाइम स्टूडेंट कमिट दिस मिस्टेक दैट rather than writing the crux of the question they keep writing the scholars. एक के बाद एक वो एक बात को 4 स्कॉलर से बता देते हैं और चारों का समरी सेम होता है. दिस शुड नॉट बी डन. अभी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा. ठीक है. ये कुछ मेजर इश्यूज हैं, मतलब वही कॉमन इश्यूज हैं जो सबके हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम हमेशा देखते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, क्लासेस पढ़नी करनी है, सब चीज़ अपनी जगह है. प्रेजेंटेशन, क्लैरिटी, लॉजिकल फ्लो और बैलेंस जजमेंट इज वेरी मच नेसेसरी. अब ये कैसे आएगा? लेट अस से एक कंफ्यूजन, एक प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट्स के आंसर्स में देखी है कि व्हेन दे वाइंड अप एनी आंसर, जब वो कंक्लूड कर रहे होते हैं, दे यूजुअली कंक्लूड ऑन द नेगेटिव एंड. लेट अस से मैं कि सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग ही ले लेते हैं फिर से. द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग ऑफ द प्लेटो. तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग ऑफ प्लेटो को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 मार्कर ले रहा हूं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, स्ट्रेट लेते हैं एक. या आप कोई टॉपिक बताओ जिसको हम उठा सकते हैं. लेट अस से वी हैव टू इवैल्यूएट फिलोसफर किंग कमेंट, दैट्स इट. कीवर्ड इज कमेंट. हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? If it's a 10 marker, if it's a 15 marker, in both the cases introduction would differ. When it's a 10 marker, hit the bullseye and tell them about in his famous work Republic, or by looking at the degeneration of the Athens or the crisis he was facing in Athens, he came out with the idea of philosopher king in his famous work Republic. 10 marker. 15 marker में you have a scope of writing one more page, क्योंकि बीच का कंटेंट तो सेम रहेगा. The concept of philosopher king, who would be philosopher king, the problems of philosopher king. Despite the problems in the modern era, philosopher king remains a very important concept. What is going to change is the introduction over here. यहाँ पे introduction can be bit lengthy. Here you can start from the history of Athens. Students क्या करते हैं, वो 10 मार्कर में history of Athens से start कर देते हैं और 2 पैराग्राफ्स इसी पे चले जाते हैं. By 3rd paragraph, then they come to the fact what exactly is PK. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? यू लूज अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग समथिंग विच इज अननेसेसरी एंड देन यू डू नॉट राइट विच इज नेसेसरी एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स. ये एक मेजर इशू आ जाता है. तो इन द 10 मार्कर, इन द 15 मार्कर फॉर द सेम क्वेश्चन इंट्रोडक्शन डिफर्स. अच्छा, सेम वुड बी विद द चेंज ऑफ क्वेश्चन. लेट अस से Plato's PK is the epitome of justice. अब यहां क्वेश्चन चेंज हो गया. Plato's PK is the epitome of justice. Now what is the keyword over here? Justice. What you need to do is you need to evaluate PK vis-a-vis justice. So here you need to tell that because of the crisis of the Athens, Plato had an objective in mind that I have to ensure justice in this society, and for ensuring justice, PK became one of the important vehicle apart from education and communism. यहां क्वेश्चन की वजह से इंट्रोडक्शन वेरी कर गया, क्योंकि यहां अब बच्चे पीके पे आ जाएंगे. पीके तो है ही नहीं ना, जस्टिस लानी है, पीके के थ्रू लानी है. क्योंकि अब अच्छा ऐसा क्वेश्चन होगा या तो 15 मार्कर होगा या लेट अस से 20 मार्कर होगा. अब चलो इस क्वेश्चन को 20 मार्कर करते हैं. अब 20 मार्कर का प्रॉब्लम यह आ जाता है कि 20 मार्कर में थोड़ा टाइम बाद लगेगा रिपीटिशन. ठीक है. अब नाउ दे आर आस्किंग प्लेटोस पीके इज द एपिटोम ऑफ जस्टिस. आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, आस्क वन थिंग इन योर माइंड कि
इज दिस द ओनली वे ऑफ अचीविंग जस्टिस? जब प्लेटो ने जस्टिस की बात करी तो क्या एक ही सिस्टम की बात करी? उसने और भी आइडियाज दिए. सो टेल देम द आइडिया ऑफ जस्टिस, tell them how PK happens to be one of the important vehicle of justice, tell them how PK tried to achieve justice, tell them PK failed, but at the same time there were other methods as well, and at the end tell them that not just PK, all of them were very important in his notion of justice. And even in the modern world, the idea of education, the idea of the right distribution of property, the idea of the knowledge based system is definitely going to provide justice. All the modern problems can be resolved through these many ideas. 20 marker hai. So for this 20 marker, we can start from like what justice means for Plato. What is justice for him? Exactly, you can start with. You can tell them his notion of justice and how to achieve justice. वो हम इंट्रोडक्शन में ला रहे हैं ना. The problem, the Athenian problem, the Athenian solution, या द एथेनियन प्रॉब्लम एंड द प्लेटोनिक सॉल्यूशन. हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ एथेंस वर्सेस द सॉल्यूशन गिवन बाय प्लेटो. नाउ दैट प्लेटोनिक सॉल्यूशन इज नॉट लिमिटेड टू द पीके, इट हैज अदर डिफरेंट एलिमेंट्स एज वेल. इसके पहले जब आपने वो आंसर में बताया कि हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि वो कम्युनिज्म मतलब प्रॉपर्टी वाला और वो सारी चीजें भी हैं अपार्ट फ्रॉम पीके, तो ऐसे नहीं हो जाएगा सर कि जैसे क्वेश्चन में जस्टिस को फिलोसोफर के से रिलेट किया, तो हम जब कंक्लूजन में बाकी चीजों के साथ जा रहे तो थोड़ा डाइवर्ट हो रहे, ऐसे नहीं लगेगा वो जो क्वेश्चन को नहीं. उसका रीजन है, देखो अगर अब यही क्वेश्चन 10 मार्कर है तो आपका आइडिया सही है क्योंकि वी डोंट हैव स्कोप. लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 पेजेस का है, 20 मार्कर है, then we do not have much content to write down 4 pages, or we would be repeating the pages. Because they are asking, Plato's PK is the epitome of justice. You need to tell them, yes, I adhere, yes, I agree to your question, but not the only way to achieve justice. Education was also one way, communism was also another way. At the end, अल्टीमेट सोल्यूशन. द लॉज में लास्ट में जब उसका अरिस्टोटल से डिबेट होता है तो यही कहता है कि यस, व्हाट आई सेड वाज नॉट 100% राइट, देयर आर अदर वेज ऑफ अचीविंग जस्टिस एज वेल. वी नीड टू हैव अ रिपब्लिकन सिस्टम, वी नीड टू हैव अ डेमोक्रेसी. तो अब अच्छा वो ना देखो, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं दो चीज़ों पे, कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन एंड द पेजेस गिवन टू राइट. क्लियर? क्योंकि कीवर्ड ठीक है जस्टिस पे जा रहा है, लेकिन पेजेस अगर 2 हैं तो फिर पीके तक बातें हो जाएंगी. लेकिन लास्ट में हम थोड़ा सा बताएंगे कि नॉट जस्ट पीके, देयर वर अदर वेज एज वेल, जिसमें एजुकेशन एंड कम्युनिज्म आर द प्रोमिनेंट आइडियाज. ठीक है, एंड दीज आइडियाज आर स्टिल रिलेवेंट इन अचीविंग द जस्टिस इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज. ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट कम्स टू द 20 मार्कर, तो देन तो यू हैव लिबर्टी टू राइट मोर. क्लियर? टेल देम अबाउट व्हाट इज जस्टिस, टेल देम अबाउट हु इज पीके, tell them about how PK will bring justice, tell them about no, PK would not be able to bring justice because PK has some problems, tell them about what after PK, and tell them about how this justice, these ideas of Plato are still very much relevant. नहीं, वो फिर वहां यूज होगा, वो आईआर में यूज होगा. यहां पर्सन स्पेसिफिक नहीं है. आईआर में स्टिल यू कैन यूज, यहाँ तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है क्वेश्चन. जस्टिस के कॉन्सेप्ट का करंट रेलेवेंट. अब देखो, सबसे पहले यू नीड टू फिगर आउट द करंट प्रॉब्लम्स. अपने माइंड में लिस्ट करो करंट प्रॉब्लम्स क्या क्या है. मेजर करंट प्रॉब्लम्स यही हैं. कैन बी सॉल्व थ्रू, if a person is knowledge based, if the rule is knowledge based, you can solve the problem of inequality.
You can solve the problem of optimum utilization of or distribution of resources. If you apply the idea of communism, you can definitely solve these two problems. And if you solve the problem of education, then you would be able to solve the current problems. ठीक है, environmental problems, cyber problems. हाँ उसमें तो सर फिलोसफर किंग को एपिटोम बताया पूछा गया, ठीक है, उसको कैसे जस्टिफाई करूंगा मैं? एपिटोम बताया गया ना, तो आप बताओगे ना कि कैसे फिलोसफर किंग अगर आज होगा तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बिल्कुल तो नहीं कर देगा, तो सर मैं उसको कैसे वहाँ पे एक छोटे से पैराग्राफ हाँ, नहीं क्यों नहीं लगता कर देगा? क्योंकि सर फिलोसफर वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा। वो तो हम पहले उसको बता चुके हैं ना। देखो हर चीज के हमेशा याद रखना, व्हेन इट इज ह्यूमैनिटीज में बोथ दी साइड्स आर करेक्ट। ठीक है, कैन पीके सॉल्व द प्रॉब्लम? यस। कैन पीके 100% सॉल्व द प्रॉब्लम? नो, क्योंकि दिस इंस्टीट्यूशन बाय इटसेल्फ हैज इश्यूज। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि विद इन आंसर you have to embed the criticism of as well. तो जैसे पहले एक्सप्लेन करके मैंने एक पैराग्राफ क्रिटिसिज्म का दे दिया, बिफोर कंक्लूजन एक पैराग्राफ में करंट रिलेवेंस का दे रहा हूं, जो कि जनरल ट्रेंड होता है कि भाई कंक्लूजन से पहले आप करंट रिलेवेंस दे। सो वो एकदम से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जस्ट अबव वाले पैराग्राफ का जो क्रिटिसिज्म है। Despite of the above criticism, despite, nevertheless, ये वर्ड हमेशा लगाओगे, despite of the above criticism, nevertheless the idea of PK has been very much prominent in solving, can be very much prominent, क्योंकि अभी तक तो अप्लाई किया नहीं, can be very much prominent in solving the modern day crisis of inequality, poverty, lack of resources, ठीक है, और climate justice सारी। For PK delivering justice, sir, we can quote example of Nelson Mandela, sir, who brought justice for blacks, sir. Last में बता सकते हो, the idea of PK has been utilized in many countries like South Africa, like India, where justice has been achieved by using the knowledge based system. ऐसे बोल सकते हैं सर, मेरे को लगता है कि इससे मोस्ट सुटेबल यही होगा कि हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल क्लास जो है अगर वो ट्रेंड होगी, एजुकेटेड होगी, लाइक फिलोसफर की, वो सप्लीमेंट करेगी रूल ऑफ लॉ और वो फॉलो करेगी। अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली जैसे एग्जाम्पल है ना कि देयर इज अ लॉ एंड देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दोनों में वेरी है। लॉ है लेकिन उस लॉ को कब अप्लाई करना है और किस डिग्री पे अप्लाई करना है, तो दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन दी नॉलेज और दी विजडम। नॉलेज से ज्यादा यहाँ वर्ड है विजडम, नॉलेज तो सेकेंडरी है, विजडम है। ठीक, जैसे हमेशा रूल बेस्ड सिस्टम, जैसे एथिक्स में आप करोगे, एथिक्स में यही ब्यूरोक्रेसी की आपकी केस स्टडी आ जाएगी कि आपके पास कोई पर्सन आया, ठीक है, उसको राशन कार्ड लिंक कराना था, बट राशन कार्ड लिंक होने का एक प्रोसीजर था। अब प्रॉब्लम यह है कि या अगर वो उस प्रोसीजर से आता है तो वो हंगर और डेथ देख सकता है, और अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते तो आप सस्पेंशन देख सकते हो। हियर कम्स विजडम। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही पीके होगा तो वो 100% रूल बाउंड नहीं होगा, तभी तो वो कहता है कि इट इज विजडम विच विल रूल द वर्ल्ड। ठीक है, कहता है ना, नथिंग कैन बी अबव नॉलेज, इवन लॉज आर नॉट अबव नॉलेज। Knowledge is mightier than the laws. Aristotle says that. क्या? Law is above. नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कहता है नॉलेज इज अबव लॉ। इनफैक्ट इसकी कोटेशन है ना कि इफ देयर वुड बी फिलोसफर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, द वर्ल्ड विल नॉट सी मिजरी। अगर पूरे वर्ल्ड में फिलोसफर्स होंगे तो फिलोसफर्स कभी वर्ल्ड मिजरी नहीं देखेगा। इसके जस्ट ऑपोजिट वो कहता है एरिस्टोटल कि अगर वर्ल्ड लॉस से चलेगा तो वो भी मिजरी नहीं देखेगा। तो ये तो दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों स्कॉलर्स का। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमें ये चीजें ना कंटेम्परेरी, अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है पीके, अब चांसेस अगेन वही प्लेटो के बहुत कम है आने के हर बार की तरह, बट यस, हम, मेरा मतलब कहने का ये है कि वी कैन एक्चुअली मेक 1A मोर इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है 1A को हम और बेटर कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं एग्जामिनर के लिए, और थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं इन द आंसर्स। एवरीवन मस्ट बी राइटिंग दैट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। If we will add the current aspect, if we will add the relevance aspect, हमें 1A में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? नो डाउट 1B हमेशा से स्कोरिंग रहता है, बट 1B का मुझे एक डर रहता है कि व्हाट इफ दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस जैसे इस साल आए हैं, और फिर उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है? उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अल्टीमेटली बहुत ओपन एंडेड आंसर्स। इस बार मेंस में यही हुआ ना
लिख सब रहे थे पर कंफ्यूजन ये हो रहा था कि सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। तो मोर और लेस वो मार्क्स में दिखा भी कि इवन वन ऑफ द गुड कैंडिडेट्स दे वर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 263 264 मार्क्स, 267 मार्क्स हैं एक स्टूडेंट के, जबकि लास्ट ईयर उसके 290 थे, 90 288, 20 नंबर का फॉल हुआ। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और, हाँ मुझे उससे याद है उसने क्या किया, उसने अच्छा पॉइंटर्स पे एक हमेशा कंफ्यूजन रहता है, आज मैं ये भी सोच के आया था, इस पर बात करूंगा। पॉइंटर्स लिखने चाहिए नहीं लिखने चाहिए, ये भी मार्केट का एक मेजर मिथ है कि कैन वी राइट द आंसर्स इन पॉइंट्स और वी शुड ओनली फोकस अपॉन दी पैराग्राफ्स। अभी तक क्या ट्राई किया है? सर 20 नंबर में तो पॉइंट टू पैराग्राफ ही बन जाएगा। 20, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, हमेशा से ना मार्केट में ये बताया गया है कि पैराग्राफ राइटिंग इज द बेस्ट राइटिंग, और ऐसा होता था यूनिवर्सिटीज़ में, हमें भी यही बताया जाता था और हम भी ऐसे ही कॉपी वैल्यूएट करते थे यूनिवर्सिटी में। बट द प्रॉब्लम इज इन द नेचर ऑफ क्वेश्चन, आप देखेंगे द क्वेश्चन हैज़ बिकम या तो बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड होता जा रहा है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में ना कई बार ओनली पैराग्राफ्स इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज अ डुअल अप्रोच, यू कैन राइट द पैराग्राफ एट द सेम टाइम कहीं अगर आपको फीचर्स लिखने हैं, बिहेवियरिज्म के फीचर्स लिखने हैं, ठीक है, या फिर आपको इंडिया नेपाल रिलेशंस लिखने हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस लिखने हैं, यू कैन पेन डाउन दैट इन दी पॉइंटर फॉर्मेट। मतलब पूरा आंसर पॉइंटर में नहीं जाएगा, आंसर कैन बी दैट इंडिया नेपाल रिलेशंस, ठीक है, सो वी हैव सीन द पास्ट 50 80 years or 100 years of relations in so and so format, ठीक है, and there has been a lot of development in the relations. In the recent times the relations have come this far points. Economically we are doing better, ठीक है, then diplomatically we are doing better, border issues have been resolved, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, crisis have been resolved, ठीक है, youth interaction is increasing, ये points में। then later stage but it has various challenges as well, फिर points में वो challenges, and at the end paragraph में you can wind up the future of relations, ठीक है। so this can be one way of winding up ऐसे questions। अच्छा इसको अगर हम प्योर पैराग्राफ में ले जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम हो जाता है कि पैराग्राफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ पूरा करना है, सो दे ट्राई टू स्ट्रेच द आंसर। वो इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक के 2 ही पॉइंट है लेकिन लिखना तो पूरा पैराग्राफ है, देन यू विल ट्राई टू स्ट्रेच द आंसर फॉर 3-4 लाइन्स, और 3-4 लाइन्स आप सिर्फ उसी चीज पे लिख दोगे। तो इससे क्या होगा कि व्हेन यू विल पुट अप द पॉइंटर्स एज वेल, सो यू वुड बी एबल टू अकोमोडेट मोर कंटेंट इन द गिवन स्पेस। तो एक ही अप्रोच अगर आपने यूज करी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो इस बार आंसर राइटिंग में करके देखना बिफोर मेंस, यू विल गेट टू नो दैट यू आर एबल टू ब्रिंग बेटर आंसर्स। और ये अप्रोच इस बार प्रियम जैन ने यूज करी थी, ही इज 700 समथिंग, इज अ ब्लाइंड कैंडिडेट। उसने क्या किया, 2B में मोस्टली आंसर्स पॉइंटर्स में ले गया वो, एंड दैट हेल्प हिम, उसके 25 या 30 मार्क्स बढ़े थे। लास्ट टाइम ही वाज हैविंग 240, इस बार उसके हैं 268, ठीक। तो उसने इस तरह से क्वेश्चंस में आंसर्स अपने चेंज करने स्टार्ट किए, तो उससे क्या हुआ, ज्यादा कंटेंट आया है एंड डेफिनेटली क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई आंसर लिखेंगे तो हमें कुछ पर्सपेक्टिव आंसर के रखने जरूरी हैं, जिससे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में पता होता है, एनालिटिकल एबिलिटी, उस चीज को एनालाइज करना, स्कॉलर्स की अवेयरनेस, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस एंड एट द एंड बैलेंस जजमेंट। नो आंसर हैज टू बी लेफ्ट इन अ नेगेटिव मैनर। आप ये बस एक्सेप्ट फाशिज्म, यूजुअली पूरे सिलेबस में फाशिज्म एक ऐसा आइडिया मिल जाएगा जिसे हम नेगेटिव एंड पे ही एंड करेंगे, नेगेटिव नोट पे ही एंड करेंगे। रेस्ट एवरी, आई गेस एवरी क्वेश्चन विल हैव अ पॉजिटिव एंडिंग, पॉजिटिव एंड अ वे फॉरवर्ड एंडिंग, समथिंग टू लुक अपॉन, कि नहीं यार ठीक है प्रॉब्लम थी, क्राइसिस इश्यूज थे इसमें, ठीक है, पावर के अपने क्राइसिस हैं, बट एट द सेम टाइम पावर रिमेन्स द ओनली यू कैन से टूल इन द स्टेट पॉलिटिक्स, क्लियर। तो इस तरह से एट द एंड इट हैज टू बी पॉजिटिव इन नेचर। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक हमेशा स्टूडेंट्स का आता है कि कितना परसेंटेज डिवाइड करें, कितने परसेंटेज डिवाइड करें, एज इंट्रोडक्शन कितने परसेंटेज में जाना है, बॉडी कितने परसेंटेज में जानी है, कंक्लूजन कितने में जाना है, इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। आई गेस जब ये सॉल्व हो जाएगा ना, कीवर्ड क्या है, तो कॉम्पोजिशन सॉल्व हो जाएगा। आपने जब ये देख लिया, जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि एपिटोम ऑफ जस्टिस, अब इसमें जस्टिस पे कितनी देर लिखना है, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ, पीके पे कितनी देर लिखना है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंज, जहां पे 2-3 कीवर्ड्स होते हैं। देखो दिस इज अबाउट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन देखा कि इज एन एपिटोम ऑफ जस्टिस, तो वहां पे जस्टिस कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड फॉर मोर देन 1 पेज, वो सॉरी 1 पैराग्राफ। जस्टिस पे आप 1 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। जस्टिस रिमेन्स द मोस्ट
universal and the most prominent idea of the 21st century as well. Or justice has been the most concerned topic of political science from the Greek history till the Rawlsian theory, till the from the 5th century BC till 21st century. इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि in the past 2500 years justice has remained the prominent concept of political science and the political scholars. यहां से आप बस इतना ही justice, and with time the notion of justice has changed, the concept of justice has changed, but the core idea has remained same. जैसे प्री सोक्रेटिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट अलग था, रॉल्स के टाइप में कॉन्सेप्ट अलग है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बस इतना ही जस्टिस पे। डू नॉट स्टार्ट राइटिंग कि इस स्कॉलर ने जस्टिस के लिए ये कहा, उस स्कॉलर ने जस्टिस के लिए कहा, क्योंकि वो यहाँ पूछ ही नहीं रहे, उनका आइडिया है पीके, बस इतना जस्टिस पे लिखा और फिर अपन मूव कर गए पीके पे। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है, प्रपोर्शन ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज इफ यू विल बी एबल टू राइट द राइट प्रपोर्शन इन योर आंसर्स, यू वुड बी एबल टू डू जस्टिस विद योर आंसर्स। स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं हम आंसर पूरा लिख के आए, मार्क्स नहीं आए। क्या रीजन है? रीजन यही हो सकता है कि आपने उस एरिया पे बहुत ज्यादा लिख दिया जितनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और एग्जामिनर ढूंढता रहा होगा 2 पेजेस तक कि ये काम की बात कब लिखेगा। दिस ऑल्सो हैपेंस मेनी टाइम्स। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वुड ऑल्सो मीन अ मल्टीपोलर एशिया, कमेंट। क्या है इसका कीवर्ड? वैसे तो इसमें दे रखा अप्रोच। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर would also mean a multipolar Asia for India. मेरा एक और डाउट है, पेपर में सिर्फ 10 मार्क्स का पहले शुरू करना चाहिए या 20 मार्क्स का उसका भी कोई? देखो इसके लिए भी है कि क्या पहले 10 मार्कर स्टार्ट करें, पहले 20 मार्कर स्टार्ट करें। यूजुअली स्टूडेंट्स 10 मार्कर पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि दे आर गुड टू गो कम, लेकिन अब ये आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि 10 मार्कर में क्या होता है ना, अगर हम कंटेंट फिल्टर कर पाएं, हमें पता है हमें इतना ही लिखना है तो हम उसको जल्दी लिख लेते हैं। 20 मार्कर में हम फंस जाते हैं और हम चीज़ों को स्ट्रेच करने लग जाते हैं, तो वहाँ टाइम वेस्ट होता है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स के साथ। तो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि 10 मार्कर आप पहले लिखोगे तो आपके 50-50 मार्क्स सॉर्ट हो जाएंगे, वो सॉर्टेड है। अच्छा 10 मार्कर ना आपको किक स्टार्ट दे देगा, क्योंकि 10 मार्कर में आपको जंप करना है सीधा, कोई थ्योरी बेस बिल्डिंग नहीं करनी है, तो आपको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 10 मार्कर्स आर हाईली रिपीटेटिव। आपको पिछले 20 साल के क्वेश्चंस में से 10 मार्कर्स रिपीट होते दिखेंगे, क्योंकि 10 मार्कर में यूपीएससी के पास स्कोप नहीं है। बिहेवियरिज्म, फिर से बिहेवियरिज्म, आप बिहेवियरिज्म देख लो, पोस्ट बिहेवियरिज्म पे हर दूसरे साल क्वेश्चन दे देंगे। तो वो आप ये कर रहे हो 10 मार्कर के लिए। पास्ट जो हम यहाँ करेंगे भी, हम 30 ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पास्ट 20-30 ईयर्स के क्वेश्चंस के 10 मार्कर्स रट लो। एड वर्बेटिम होंगे, जब कोई चीज एड वर्बेटिम होगी तो लिखना इजी हो जाएगा, लिखना इजी हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम एग्जाम में अपने लोगों ने मीन्स दिया, आपको बेटर पता है, जहां पे हम पहले 2-3 क्वेश्चन में फॉल्टर करने लग जाते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है और फिर हम गेम लूज करने लग जाते हैं। अगर हमने पहले 2-3 क्वेश्चन ठीक लिख दिए तो हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाए, ये तो पूरा पेपर हो जाएगा। फिर जो उसमें ऐसा क्वेश्चन भी है ना जो हमने नहीं पढ़े नहीं सुने, हम उसको भी लिख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से 10 मार्कर लिखना ईजी है, ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ी सुनी बातों से आता है। बहुत रेयर ऐसा होगा कोई 10 मार्कर होगा, जैसे ट्रॉट्स्की का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था, एक 10 मार्कर था, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे 10 मार्कर में कहीं जो कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन आउट ऑफ 5 4 क्वेश्चन होंगे जो 100% रिपीटेड होंगे। और सर जो इवैल्यूएट होता है उसमें भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि वो पहले अगर मतलब लास्ट मोमेंट में से 10 मार्कर किए हैं तो वो ज्यादातर हैप्पीसार्ड मोमेंट होंगे, कुछ में छुटा हुआ होगा, कुछ में मतलब एटलीस्ट राइटिंग तो गंदी होगी, तो जो इवैल्यूएट होता है उस पर कैसे पड़ता है कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाएगा 10 मार्कर से ना, क्योंकि वो सबसे पहले तो 10 मार्कर ही पड़ता है, इसीलिए बिल्कुल पढ़ सकता है। देखो इस पे ना यूपीएससी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देती कि इवैल्यूएटर क्या सोचता है। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी उससे आता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इवैल्यूएटर नो डाउट है तो ह्यूमन ही वो। अब कई लोग कहते हैं कि अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है तो भी चलेगी गाड़ी, मतलब एग्जाम में अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं तब भी चलेगी। मैं भी कहता हूँ कि हैंडराइटिंग के लिए यूपीएससी डजंट डिडक्ट योर मार्क्स। ऐसा होता नहीं होगा कि यूपीएससी आपके मार्क्स डिडक्ट करती होगी पुअर हैंडराइटिंग के लिए। पुअर एज एन लेजिबल होनी चाहिए, पुअर से मतलब है कि जो लिख रहे हो वो समझ में आना चाहिए। लेकिन हाँ, क्या ये ह्यूमन फैक्टर नहीं है कि अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो उसे कुछ तो एक्स्ट्रा मार्क्स खुश होकर एग्जामिनर दे देता होगा। जैसे आप कहीं कोई अच्छी हैंडराइटिंग पढ़ो तो आपको वाव फैक्टर दिखता है ना, यार हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, तो ये तो है, तो वो भी ह्यूमन। तो बिल्कुल होता होगा कि अगर फर्स्ट कुछ आंसर्स हमारे ठीक नहीं जा रहे हैं और हमने उसे बहुत हैप-हैज़र्ड और बहुत ही लास्ट मोमेंट लिखा है, वाइंड अप किया है, तो उसका मूड जरूर खराब हुआ होगा कि यार
पहले 4 आंसर्स इतने ख़राब लिखे हैं, और हो सकता है वो आपकी बुक से, आपकी नोटबुक से डेविएट होने लगे, क्योंकि है तो यार वो भी ह्यूमन है। जैसे आप इवैल्यूएट करते हो, मैं मुझे भी मैं हाँ मान लो पहले 10 मार्कर ठीक ठाक लिखे गए हैं, फिर उसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल गंदा लिख दिया, ठीक है, उसके बाद वो 20 मतलब 15 मार्कर वो ठीक लिखे हुए हैं, तो सब उस पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर इवैल्यूएट करता, मैं इवैल्यूएटर होता, यहाँ तो कोचिंग का तो अलग है ना, यहाँ तो कंपलसरी होता है एक एक चीज़ को ठीक से इवैल्यूएट करना, पहला आंसर गलत भी लिखा है तो उसे ठीक कराना। लेकिन हाँ, अगर मैं इवैल्यूएटर हूँ, यूपीएससी में बैठा हूँ, तो मुझे इस बात का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा कि यार पहले 4-5 आंसर्स ठीक नहीं है। और ये ना बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है, कौन किस मूड में है। कई बार आई ऑलवेज से एग्जाम लक का भी है, क्योंकि आपकी कॉपी किसके पास गई है। मैं भी वही जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप एक दिन में मान लो यहाँ पे करते 2 कॉपी सेट, बच्चों की 5 कॉपी 6 कॉपी सेट, जो छठी सातवीं कॉपी आ रही है और वो कॉपी ऐसी है जिसमें पहले क्वेश्चन अच्छे नहीं लिखे हुए, तो बाद वाले क्वेश्चंस पे उसका असर पड़ता है, क्योंकि मैं अब तक सारे पेपर पीछे से शुरू करता आया हूँ कि पहले 20 मार्कर, फिर 10 लास्ट में 10 मार्कर 1 बी के, और पहले 10 मार्कर 1 ए के, ठीक है, गड़बड़ होगी वो 1 बी में हो जाएगी, हाँ, और 1 ए में थोड़ा थोड़ा सा ठीक होगा, ठीक है, मोस्टली उसमें गड़बड़ी होती है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा छूट गया, लेट हो गए, कुछ लेट हो गया। लेकिन मुझे वही, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको नहीं लगता इसके बाद कि 1A 1B करना, हमारे इस डिस्कशन के बाद 1A 1B 1A 1B के मतलब 10 मार्कर्स करना ज़्यादा इजी और बेटर है? उसके लिए तो सर मेरे काउंटर कुछ आर्गुमेंट है, उसमें ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही है कि गड़बड़ होने की संभावना 10 मार्कर में कम है, नंबर एक ही काटेगा, एट मोस्ट जितने भी काटेगा, अगर मैंने वो पेज पूरा ठीक ठाक ज्यादा नहीं, लेकिन 20 मार्कर में सीधा 3-4 नंबर का असर पड़ेगा, जो कि 4 क्वेश्चन बढ़ा देगा। 20 मार्कर को ना फिर भी सेल करना आसान है। 20 मार्कर तक ना आपका दिमाग, देखो जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा मेंस में कि पहला एस्से का जो पहले स्टार्टिंग होता है और जो दूसरा एस्से होता है उसमें हमेशा फ़र्क होता है। पहले एस्से में हमारे माइंड में फ्रिक्शन होता है, जैसे जैसे हम लिखना शुरू करते हैं थोड़ी बाद हमारे थॉट्स और आने लग जाते हैं। तो सेकंड एस्से अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक से किया है तो सेकंड एस्से हमेशा पहले एस्से से बेटर होता है, अगर टाइम मैनेजमेंट किया है। टाइम मैनेजमेंट सर, प्रैक्टिकली टाइम मैनेजमेंट तो पॉसिबल है नहीं, वो लास्ट आंसर जो भी बिल्कुल आप कुछ भी कर लो, बिल्कुल लास्ट आंसर आपका ये होगा कि 5 मिनट में 6 मिनट में आया, तो आप 20 मार्कर तो आपके पास 7 मिनट होगी, बिल्कुल 10 मार्कर आपके पास 3 मिनट, परफेक्ट है। लेकिन एटलीस्ट हमें ना 10 मार्कर में ये क्लैरिटी है कि क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हमें ना कंटेंट के लिए बहुत सोचना नहीं है, डिग नहीं करना। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन रिपीटेड है तो आपको ना डिग नहीं करना, आप लिखते जाओगे फ्लो में, और एक बार राइटिंग का फ्लो बन जाएगा ना तो आपको खुद ये बात फील होने लगेगी कि बाद के क्वेश्चंस भी ठीक होने लगे। ये अप्रोच आप इस बार यहाँ लेके करो, कि बेस्ट है ना कि आप ये चीज़ें यहाँ के टेस्ट में करो, एफएलटीज में आप पहले 10 मार्कर्स लिखो, 10 मार्कर्स लिखने के बाद आप 15 और 20 पे जाओ, और फिर मुझे ये बताओ कि हाँ मेरे लिए कोई फर्क नहीं आया या मेरे लिए फर्क आया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल अप्रोच है, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। सब करके देख लिया, चलो इस बार आंसर लिख के देखना, देखते हैं क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये भी करके देखते हैं, ठीक है ना। ये तो देखो एग्जाम में एक प्रॉब्लम तो है कि कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मुझे इस बार कम मार्क्स क्यों मिले, मैं वैसे ही लिख रहा था जैसे मैं पिछली बार लिख रहा था। इसके लिए ना मेरे पास एक आंसर है। देयर यूज्ड टू बी वन स्टूडेंट, अरुणेश झा नाम था, शायद 136 रैंक सोशियोलॉजी का था। उसके फादर कॉपी वैल्यूएटर है, मतलब सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है किसी यूनिवर्सिटी में। तो उसने ऐसा बताया था 2018 में कि होता ये है कि अल्टीमेटली यूपीएससी जब कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो एक हेड एचओडी को बुला लेता है। जैसे इस बार कॉपीज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जानी है पॉलिटिकल साइंस की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एचओडी को बुला लिया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा कि यार दीज आर द नंबर ऑफ कॉपीज एंड यू हैव द लिबर्टी टू ब्रिंग एज मेनी प्रोफेसर्स एज यू वांट, ठीक है। इन कॉपी के लिए आपको 10 प्रोफेसर चाहिए, 10 प्रोफेसर्स की टीम आप रेडी कर लो अपनी। अब वो पर्सन वुड बी द हेड, यूपीएससी कॉपीज हैंड ओवर कर देगी, यूपीएससी ना तो कोई मॉडल आंसर्स देती है ना कोई डायरेक्शंस देती है। अब वो जो पर्सन जो हेड होता है उस टीम को लीड कर रहा होता है, जो टीम लीडर होता है, वो अपने नीचे बैठे प्रोफेसर्स को बता देता है कि ये हमें देखना है कॉपीज में, ये बातें हमें ध्यान रखनी है और इस बेसिस पर हमें मार्क्स देने हैं। ये हुआ ए यूनिवर्सिटी में। आपने साल मेंस लिखा, आपके आए 250 नंबर, आपने कहा मेरी स्ट्रैटेजी, आपके आए 290 नंबर, आपने कहा मेरी स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी, मैं इसी को अगली बार करूंगा। अगली बार हो सकता है वो बी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के टीम लीडर की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। उसने कहा नहीं यार इन बातों पे मार्क्स नहीं देने, इन पे देने हैं। लेकिन आप तो पिछली वाला थॉट प्रोसेस लेके आए थे, इस बार वही आंसर लिखने पे होगा 250। यूपीएससी का ये प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिविटी। ह्यूमैनिटीज का भी यही प्रॉब्लम है, तो कोई मॉडल आंसर वो किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहा। मॉडल आंसर्स यूपीएससी लेकिन सर जो डायरेक्शंस। आरटीआई का रिप्लाई आया था यूपीएससी को, उसमें उन्होंने बताया था कि हम स्टेज टू स्टेज मीडिएटर रखते हैं बीच बीच में, और ऐसा होता है कि रेशियो होगा कि इतनी एक इवैल्यूएटर इतनी ही शीट चेक करेगा, एग्जैक्टली। तो सर वो
वो एग्जैक्टली वही वो कह रहे हैं ना, इतनी कॉपीज हैं तो कितनी टीम बनेगी। तो एक एचओडी की लिबर्टी तो नहीं रही अब। नहीं, एचओडी की लिबर्टी के लिए डायरेक्शन तो एचओडी दे रहा है ना, नीचे मीडिएटर से लेके उसने एचओडी को दे दिया, एचओडी ने अपनी टीम को डायरेक्शन दे दिया। लेकिन पर शीट कितने बंदे, एक शीट में कितने? हाँ वो तो वही मैंने आपसे कहा ना, टीम कितनी बड़ी चाहिए, वो डिपेंड करे ना कॉपी कितनी गई है, उसके अकॉर्डिंग टीम बनेगी ना। ओवर बर्डन कोई नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली देखो ह्यूमैनिटीज, क्योंकि ना मैंने खुद यूनिवर्सिटी में काम किया है, मैं जामिया में 2016 तक था। ह्यूमैनिटीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ओपन अप्रोच है वो, और यही हम लोग फेस करते हैं कि हम कई बार पूरा आंसर लिख के आते हैं और हमें मार्क्स मिलते हैं 50%, 60%। अच्छा ये भी नहीं पता कितने परसेंट मिलते हैं, ये भी हम मान के ही चलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी हमें इतने ही मिले। हमने जब बैचलर्स करी तो हमने पूरा पेपर लिखा एंड व्हाट वी गॉट 60%, 58%, यही कुछ होगा, वो प्रॉब्लम है। सर आपको टीचर नहीं मिले, जैसे डीन का टीचर तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनको तो बुलाते ही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से टीचर्स जाते हैं, जामिया से जाते हैं, जेएनयू से जाते हैं, तो नहीं मेरे प्रोफेसर करते थे, मेरे प्रोफेसर पबेड करते थे। व्हेन आई वाज डूइंग पीएचडी ही यूज्ड टू वैलिडेट द पबेड कॉपीज, वो इसमें करने जाते थे धौलपुर हाउस में, उन लोगों को बुलाया जाता था, रोज सुबह पहुंचना होता था, दिन भर में उतनी उतनी कॉपीज दे देते थे उनको, फिक्स कॉपीज, उनको उतनी कॉपी करके आनी होती थी। और यार प्रोफेसर्स का भी ये प्रॉब्लम है ना यार, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही अकाउंटेबिलिटी का है। इस एग्ज़ाम में इवैल्यूएटर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सारी अकाउंटेबिलिटी हमारी है ना, मतलब स्टूडेंट की है या कोचिंग की है, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा इन्होंने सिस्टम इतना ज़्यादा ओपेक रखा हुआ है कि कभी हमें क्लैरिटी नहीं आ पाती कि चल क्या रहा है। बाकी कोचिंग वाले कहने को सब कहते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, फ्रैंकली किसी को कुछ नहीं पता। मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, मेनी टाइम्स वी आर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, स्टूडेंट मेरे पास आता है, सब कुछ सही होता है, उसके मार्क्स नहीं आते, मेरे पास आंसर नहीं होता, ऐसा क्यों हुआ। तो ये भी एक बड़ा मेजर इशू आता है। ठीक है ना, चलो, फॉर इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वुड ऑल्सो मीन अ मल्टीपोलर एशिया कमेंट। A multipolar world order would also mean a multipolar Asia comment. Now, first thing is you need to tell them what do you understand by that multipolarity. तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि मल्टीपोलैरिटी होती क्या है एंड हाउ मल्टीपोलैरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। देन आप बताएंगे कि हाउ दिस मल्टीपोलैरिटी हैज बैलेंस द वर्ल्ड सिस्टम। देन आप बताएंगे व्हाई दिस मल्टीपोलैरिटी इज नाउ आल्सो रिक्वायर्ड एट द एशियन लेवल। अब जब आप एशियन लेवल पे आएंगे तब आप बताएंगे इंडिया की मल्टीपोलैरिटी या इस मल्टीपोलैरिटी से होने वाले इंडिया को बेनिफिट्स। ठीक है, एट द एंड आप ये भी बताएंगे कि हाउ इंडिया कैन इंश्योर और टेक द बेनिफिट of this multipolarity and has to maintain a multipolar world order. तो ये क्वेश्चन is about the multipolar world, the benefits of multipolar world, this multipolarity will benefit Asia and how India has to take benefit out of this system. ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा। अच्छा, while writing down the such questions, what you need to do is you should have the examples to justify your answer. मल्टीपोलैरिटी के एग्जाम्पल्स अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए। क्लियर दैट व्हाई वी नीड मल्टीपोलैरिटी, हाउ मल्टीपोलैरिटी हैज बीन फंक्शनल फॉर अस, हाउ मल्टीपोलैरिटी इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, एंड विदाउट मल्टीपोलैरिटी व्हाट प्रॉब्लम्स इंडिया इज गोइंग टू फेस। एंड नेवरदलेस द मल्टीपोलैरिटी रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम विच विल हेल्प इन इंडिया अटेनिंग इट्स इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और लास्ट में इंडिया से लिंक कर देना, क्योंकि मल्टीपोलैरिटी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछी है, तो कैसे मल्टीपोलैरिटी इज गोइंग टू हेल्प इंडिया इन अटेनिंग द इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स और द ऑब्जेक्टिव्स इट हैज मेड, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाँ, In this question we have to give equal weightage to multipolar world order and multipolar Asia. नहीं, इसमें इक्वल नहीं देंगे, इसको बस हम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, देन वी नीड टू टेल देम दैट how exactly multipolar Asia is going to be developed, and then we need to tell them that how it is going to benefit for India. Clear? So focus is on multipolar Asia, क्योंकि उन्होंने पूछा multipolar Asia multipolar world बना रहा है। For a multipolar world you need a multipolar Asia. Merely without Asia world cannot be multipolar. So tell them how Asia is important, within Asia how India is important, how this multipolarity is going to sustain this multipolarity. Unless you will not have multipolarity over here, you will not be able to sustain you should not sustain multipolarity over here. Sir, here implicit demand is also about how India can contribute to multipolar Asia. For India, yes, exactly. So what India has to do. ठीक है, हाँ, आपने बोला कि मल्टीपोलर एशिया इज
हम्म। maintain multipolar world. मेरा इंटरप्रिटेशन उल्टा हो रहा था इस क्वेश्चन कैसे? कि अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड रहेगा तब एशिया भी मल्टीपोलर रह पाएगा कि वर्ल्ड मल्टीपोलर था, एशिया बहुत लेटर स्टेज में मल्टीपोलर हुआ। ठीक है। इंडिया की प्रेफरेंस तो बाइपोलर एशिया है। बिल्कुल, उसमें आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की प्रेफरेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी मल्टीपोलर, क्योंकि चाइना आगे निकल चुका है, जापान वियतनाम फॉलो अप कर रहा है, तो अब इंडिया बाइपोलर वर्ल्ड से तो बाहर जा चुका, बाइपोलर एशिया तो अब मुश्किल है बनाना। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जेल अप विद Japan, we can gel up with Vietnam, we can gel up with Philippines, and we can counterbalance China somehow. So we would always look for multipolar now, क्योंकि we are far behind in this race. ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। For India, a multipolar world would also mean a multipolar Asia. ठीक है, now read it again. For a multipolar world, it is also required to have a multipolar Asia. For India, basically India के prism से, so for India multipolar Asia is also required. So first we have to understand in this question that what pole exists actually in the world order. Then we can वो हम बता ही देंगे जब हम बताएंगे ना डिफाइन मल्टीपोलैरिटी। ठीक है, इन द एशियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट एग्जैक्टली इज मल्टीपोलैरिटी, हाउ मल्टीपोलैरिटी इज फंक्शनिंग इन द एशियन कॉन्टेक्स्ट, ये हम बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे दैट हाउ मल्टीपोलर वर्ल्ड basically can remain multipolar or if we don't have multipolar Asia, because today you have one of the fastest growing economies, fastest growing countries in Asia, and these Asian tigers, आप इसको Asian tigers के हिसाब से ले सकते हैं। earlier there used to be Japan, China, India as an Asian tigers, now you have Vietnam as well. These Asian tigers which are creating a multipolar Asia will definitely ensure a multipolar world order, क्योंकि अगर एशिया सिंगल पोल बाइपोल आ जाएगा, अगर एशिया सिंगल पोल आता है ऑल अबाउट चाइना, इट वुड बी अ बाइपोलर वर्ल्ड, इट वुड बी यूएस वर्सेस चाइना। अगर एशिया जब तक मल्टीपल पोल्स क्रिएट नहीं करेगा वर्ल्ड की मल्टीपोलैरिटी काम नहीं आएगी। और इंडिया के लिए यही है कि वी नीड टू हैव बोथ मल्टीपोलर वर्ल्ड विज़ावी मल्टीपोलर एशिया। इंट्रो हम इसमें मल्टीपोलैरिटीज के एग्जांपल से ले सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपोलैरिटी, दैट द टर्म मल्टीपोलैरिटी, व्हाट एग्जैक्टली इज मल्टीपोलैरिटी एंड हाउ इट हैज बीन सुटेबली व्यूड इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, मल्टीपोलैरिटी हैज बीन सीन आफ्टर द 2008 क्राइसिस, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद द वर्ल्ड हैव बीन शिफ्टिंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, इन विच वी हैव सीन द राइज ऑफ मल्टीपल पावर्स across the world, including the Asian tigers, rise of Japan, rise of India, China and Japan simultaneously. ठीक है, ये हो गया मल्टीपोलैरिटी का या इसका इंट्रोडक्शन। नाउ सेकेंड थिंग इज हाउ एशिया हैज टू बी मल्टीपोलर। why what are the benefits of the multipolar Asia? Now you need to tell them the benefits of multipolar Asia would definitely help India to think strategically, to act economically and to have sustainable relations across the borders. Then this multipolar Asia will definitely result into a multipolar world, or this multipolar Asia will definitely help to sustain a multipolar world. At the end, the idea of multipolarity is a very important policy option for India because it will give us opportunity in the neighborhood as well as across the globe. इसमें करंट अफेयर्स ऐड होगा, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। हाँ सर, क्वेश्चन की सेंस ये नहीं जा रही कि भाई एशिया मल्टीपोलर नहीं है, इसको ठीक। भी होना चाहिए। हाँ, तो सर इंट्रो में हम ये एस्पेक्ट नहीं डालेंगे? चैलेंजेस नहीं, इंट्रो में नहीं डालेंगे, हम बीच में चैलेंजेस लिखेंगे ना कि इस एशिया के मल्टीपोलैरिटी को चैलेंज कहाँ से आ रहा है। चलो इसको ऐसे करते हैं, सर जो हाँ जनरल आइडिया होता है कि इंट्रो में सारे क्वेश्चन के सारे कीवर्ड मतलब बेसिक सेंस वो सब आप एक बार कंक्लूसिवली डिस्कस कर दो या फिर टच कर दो, तो उस एस्पेक्ट के साथ नहीं, उसमें फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। कीवर्ड इसका क्या है? कीवर्ड कह रहा है फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड यू नीड टू हैव अ, फॉर इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड आल्सो मींस मल्टीपोलर एशिया, यानी इंडिया के लिए मल्टीपोलैरिटी स्टार्ट्स एट होम, ऐसे समझते हैं। मल्टीपोलैरिटी स्टार्ट्स एट होम, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेल देम व्हाट इज मल्टीपोलैरिटी, यू नीड टू हाईलाइट how world is multipolar,
ठीक है, वाई मल्टीपोलर एशिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक बेनिफिट्स, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स, इश्यूज इन मल्टीपोलर एशिया, क्या इशू, rise of China super as a superpower, and how India has to contain China. So if you want to achieve multipolarity over here, you have to start from here, but we have problems over here, so we have to solve them, and this will definitely result into a multipolar world system. नाउ क्या डाउट्स हैं बताओ। क्लियर हुआ? क्या डाउट है अभी बताओ। नहीं, लेट्स डिस्कस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगेन द आइडिया ऑफ मल्टीपोलैरिटी क्वेश्चन ये कह रहा है दैट इफ इंडिया वांट्स टू एंजॉय अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया शुड फर्स्ट इंश्योर दैट एशिया इज मल्टीपोलर। अब इंश्योर क्यों करे इंडिया? क्योंकि चाइना एज अ सुपर पावर राइज हो रहा है, तो इसलिए इंडिया को पहले चाइना पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने नेबरहुड पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही यहां 4 पावर्स हो जाएंगी, वर्ल्ड तो वैसे ही मल्टीपोलर हो गया। द डे यू हैव 4 सुपर पावर्स इन एशिया, वर्ल्ड उसी दिन मल्टीपोलर है, ऑटोमेटिकली इट विल बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। बताओ। US is supporting multipolar Asia but not multipolar world order. नहीं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है कि यूएस वांट्स दैट द पावर इन द एशिया शुड बी डिस्पर्स्ड बिकॉज इट वांट्स टू क्रिएट अ एंटी चाइना, यूएस वांट्स टू क्रिएट अ एंटी चाइना फ्रेमवर्क। तो यूएस विल ऑलवेज वांट दैट एशिया शुड बी मल्टीपोलर वेयर एज वर्ल्ड शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 पावर्स, या फिर यूनिपोलर आई वुड से। वो तो बाइपोलर की बात ही नहीं कर रहा, वो तो ये कह रहा है बट हैज टू बी यूनिपोलर। एंड फॉर मेकिंग, देखो पावर मैं बताऊंगा, देयर आर 2 ways ऑफ increasing your power. One is you increase your power through military means, economic means, XYZ means, or you decrease someone else's power. दोनों ही पावर इंक्रीमेंट थ्योरी का पार्ट है। अगर आपको वर्ल्ड इस समय यूनिपोलर करना है, तो सबसे पहले यू नीड टू वीकन द चाइना। चाइना को वीक करने का सबसे अच्छा तरीका है यू नीड टू क्रिएट अ मल्टीपोलर एशिया। तो यूएस वांट्स दैट इफ यूएस को ये पता है कि टू अवॉइड द बाइपोलैरिटी और टू ओवरकम द बाइपोलैरिटी फैक्टर ऑफ द वर्ल्ड, we can create a multipolar Asia. More multipolar Asia is, less powerful China is. Less powerful China is, more unipolarity would be brought in world. At the current stand, is it fine now? दूसरी चीज तो हमें ये भी देखनी है ना, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। 10 मार्कर है, स्कोप भी नहीं, 10 मार्कर है ना ये। हाँ, अगर अभी बिल्कुल करंट रेलेवेंस देखें, आज ये क्वेश्चन आता 20 मार्कर में, लेट अस से जो आ गया वो आ गया, आज ये क्वेश्चन 20 मार्कर में आता, तो क्या हम उसमें करंट उसमें हम ऐड कर सकते हैं कि हाउ द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूनिपोलैरिटी, क्लियर, या बाइपोलैरिटी। अमेरिका को पता चले कि वो सस्टेन नहीं कर सकता यूनिपोलैरिटी, तो वो G2 मतलब ग्रेड 2 की बात करके आया ट्रम्प बार-बार, तो वो
बाइपोलर वर्ल्ड, हाँ, फ्रेमवर्क को लाना चाह रहा है, सो दैट देखो वाई बाइपोलैरिटी, सो दैट हाँ क्या बात कर रहे थे हम, सॉरी, हाँ वाई बाइपोलैरिटी, वाई यूएस वांट्स टू क्रिएट अ बाइपोलर वर्ल्ड ऑन प्राइमा फेसी, बिकॉज देखो टेक्निकली यूएस वांट्स टू क्रिएट अ यूनिपोलर वर्ल्ड, but on the face it should be bipolar, so that whatever crisis happens across the world, United Nation में US also always have an answer to give. So US always want to highlight that I am the that we as a nation wants to have democratic and more open system, a more liberal system. Liberal systems are always multipolars. तो US liberalism के चलते हमेशा multipolarity डिपिक्ट करेगा या लेस पोलैरिटी डिपिक्ट करेगा, बट यूनिपोलैरिटी कभी नहीं लेके आएगा. सर वो बाइपोलर वर्ल्ड के लिए भी वो इसलिए प्रेफरेंस कर रहा है क्योंकि वो रशिया को आउट ऑफ गेम पूरा करना चाह रहा है, क्योंकि रशिया का अराउंड वर्ल्ड इन अफ्रीका आल्सो प्रॉक्सीज है मोर ओवर मोर, देखो अगेन इफ यू वांट टू in a single day you cannot destroy one power. What you can do is you can replace one power by another power, better replace a stronger power by a weaker power. So if you want to replace China at current point of time, you have Russia as a replacement, because Russia is also अच्छा दूसरा, Russia also has a say in the Arctic Circle. So if you want to create a more, you can say, economically comprehensive world, आपको रशिया को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर आर्कटिक सर्किल में क्लेम लेना है तो पहला क्लेम तो रशिया का बनेगा, एंड बाय कीपिंग रशिया ऑन टेबल यू वुड बी एबल टू मेक योर क्लेम एज वेल ग्रीनलैंड के थ्रू, नहीं तो फिर आपका भी क्लेम चला जाएगा. इसलिए यूएस वांट्स दैट व्हेन इट कम्स टू द रिसोर्सेज of the northern of the Arctic Circle, you should have one or two other players over there. So इसमें एक पर्सपेक्टिव हम ये ला सकते हैं कि करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है वो हेजेमनी के, हाँ, लेकिन जो हेजेमन है वो अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए G2 की तरफ प्रेफर कर रहा है. इंडिया बीइंग द फ्लैग बेयरर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री along with European Union and other like-minded countries like Japan and South Korea, वो प्रमोट कर सकता है मल्टीपोलर मॉडल. उसके लिए उसको मल्टीपोलर एशिया सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, सब कुछ. अफ्रीका को solidarity दिखा, India Africa solidarity, then you have India Japan comprehensive partnership in the other third world countries, then India having more sustained relations with the Latin America, ये सारा. तो इंडिया को क्या करना है, इंडिया हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू काउंटर दिस आइडिया. जैसे अगर आज ये क्वेश्चन पूछते, पोस्ट वॉर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स मोर रेलेवेंट एंड इंडियाज अप्रोच बिकम्स more relevant कि how India can help in creating this multipolar world. India can help in creating this multipolar world by incorporating or by having more comprehensive approach with G20, ठीक है, by integrating Africa, ठीक है, by having good relations with the 54 African Union nations, then at the same time maintaining relations with Latin America, at the same time maintaining relations with the European as well as the Central Asia nations. ASEAN के साथ है, Central Asia है. तो ये इंडिया का एक सही तरीका है टू अटेन मल्टीपोलैरिटी, एंड फॉर इंडिया मल्टीपोलैरिटी इज द नीड ऑफ द आवर. इंडिया के लिए मल्टीपोलैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इट सर्व्स टू पर्पस, मोर विजिबिलिटी ऑफ इंडिया एंड काउंटरिंग चाइना, क्योंकि मल्टीपोलैरिटी से हम काउंटर भी कर रहे हैं चाइना को. ठीक है. अब देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन, ये सारी बातें तो वैसे ही कर चुके हैं. क्वेश्चंस देखते हैं. फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद कौन सा था, 1B. 1B कैसा, वीक है पर्सनली, क्या है 1B का हाल? करंट कर लेंगे साथ में, करंट भी रेडी है सारा. जैसे क्वेश्चन था, डिसीजन टू कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस में आ नहीं रहा. डिसीजन टू कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस 2027 has reopened the debate on delimitation in India. Discuss its various aspects. Decision to conduct population census has reopened the debate on delimitation. Discuss its various aspects. ये ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया इस बार.
इसमें कंफ्यूजन स्टूडेंट्स ने ये क्रिएट करी हुई उनके साथ, वो सेंसस पे लिखने शुरू हो गए, क्योंकि डिसीजन टू कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस होने का पहले सेंसस बता देते हैं क्या है, ठीक है। हैज रीओपन द डिबेट ऑन डिलिमिटेशन इन इंडिया। सो द डिबेट व्हाट हैज बीन रीओपन्ड इज डिलिमिटेशन, नॉट सेंसस। तो सेंसस तो एक एक्सरसाइज हो तो होती रहेगी, लेकिन इस सेंसस को कंडक्ट करने की वजह से चर्चा डिलिमिटेशन की शुरू हो गई। डिस्कस इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स बताओ, इस डिबेट के अलग अलग एस्पेक्ट्स बताओ। इस डिबेट को दोनों तरह से एनालाइज करो कि वेदर डिलिमिटेशन इज एन एसेंशियल पार्ट और डिलिमिटेशन इज नॉट सो एसेंशियल पार्ट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू शुड स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय टेलिंग देम व्हाट इज डिलिमिटेशन एंड एक्सप्लेनिंग आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों का इंट्रोडक्शन में होना नेसेसरी है, तभी इंट्रोडक्शन वुड बी अ मोर स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन, अदरवाइज इट वुड बी मोर जेनरिक इंट्रोडक्शन। नंबर 1। दूसरा एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसमें हमारे पास ना स्कॉलर्स नहीं थे। अब तो हम ढूंढ के दे देंगे आपको, आप कहोगे सर उस समय नहीं थे, फिर क्या करते? तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके पास स्कॉलर्स नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट राइट डाउन द बेसिक स्कॉलर्स जो कि अपने PSR में यूज होते हैं, रूल ऑफ लॉ को रिलेटेड यूज होते हैं, या 2-3 लीगल स्कॉलर्स आप यूज कर सकते हैं। भाई डिलिमिटेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, ओपनिंग द perspective of delimitation is the requirement of the constitution, following the constitution is the rule of law। तो 2 आप रूल ऑफ लॉ के या 2 आप कॉन्स्टिट्यूशन के स्कॉलर्स डाल दो इसमें, डिलिमिटेशन का कोई मिलेगा नहीं, या उस समय हो सकता होगा नहीं। योगेंद्र, हाँ, और दूसरी बात, जब भी बात आएगी इलेक्शंस की, जब भी बात आएगी कास्ट की, योगेंद्र यादव हैज बीन अ वेरी यूनिवर्सल फिगर। कास्ट एंड सेंसस इन इंडिया, ओबीसी पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, योगेंद्र यादव हैज बीन अ वेरी, इलेक्शंस एंड कास्ट इन इंडिया, तो योगेंद्र यादव हैज बीन। डिबेट अब दोनों साइड की एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो वी नीड टू टेल देम दैट व्हाट इज डिलिमिटेशन, वेयर इट इज मेंशन्ड, व्हाई डिलिमिटेशन। पहला आपका 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ इस पे जाएंगे। अभी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये देखना होगा, शायद 15 मार्क का है शायद। तो पहले 2-3 पैराग्राफ इस बात पे जाएंगे, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई, व्हाट ऑफ डिलिमिटेशन, व्हाई ऑफ डिलिमिटेशन एंड व्हेन ऑफ डिलिमिटेशन, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द डिबेट अराउंड दिस डिलिमिटेशन। नाउ इवैल्यूएट द डिबेट, द पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ डिलिमिटेशन, द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ डिलिमिटेशन, द और कौन से हो जाएंगे, सोशल बेनिफिट्स ऑफ डिलिमिटेशन। On the other hand, it has the drawbacks as well, the political drawbacks as well as the social drawbacks. Economic drawbacks भी है, more money would be spent, ठीक है, constituencies has to be redrawn, a large exercise has to be taken up, 2 से 3 साल लग जाते हैं इस एक्सरसाइज में पैन इंडिया करने में, तो it has the problems from both the side, ठीक है। But at the same time, this delimitation nevertheless has been an instrumental figure in providing the justice to the public at large। SCs को उनका शेयर मिल जाएगा, ट्राइबल्स को मिल जाएगा, जैसे थ्रू डिलिमिटेशन ट्राइबल्स वुड बी एबल टू गेट मोर सीट्स और दे वुड बी एबल टू गेट इवन सीट्स। मोर तो नहीं कहेंगे, पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है, इवन सीट्स हो जाएंगी। तो अभी जो इंटरमिक्सिंग ऑफ द सेक्शंस हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। सो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट्स अ नेसेसरी एक्सरसाइज, इट इज अ नेसेसरी एक्सरसाइज। एट द एंड देन यू कैन साइट दैट हाउ द प्रीवियस डिलिमिटेशंस हैज हेल्प्ड the people to achieve their political goals, political and social goals। Getting this? तो क्वेश्चन है डिलिमिटेशन और इसके चारों तरफ होने वाली डिबेट। इश्यूज में आ गए वो तो, हाँ। जेरीमेंडरिंग का इशू है, ठीक है, कि इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि पॉलिटिकल स्टेट्स दे हैव दिस फियर दैट दे आर गोइंग टू लूज द ग्राउंड। ऑन द अदर हैंड डिलिमिटेशन के लिए जो हिडन एक्सरसाइज है वो जेरीमेंडरिंग है। जेरीमेंडरिंग बाय वेरी नेचर इज अ टिल्टेड मॉडल, है ना, इट ओनली गिव्स बेनिफिट टू द रूलिंग पार्टी। ये तो हम हमेशा देखते हैं कि जेरीमेंडरिंग से रूलिंग पार्टी इसका बेनिफिट ले जाती है, ठीक है। पॉलिटिकल ये हो गया, नहीं तो अलग करेंगे ना फिर उसके बाद हम टेक्निकल भी लेके आएंगे। कंडक्टिंग द सेंसस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम becomes a challenge, ठीक है। अब डिजिटल सेंसस की बात हो रही है, द वेरिसिटी ऑफ डिजिटल सेंसस। नहीं, डिलिमिटेशन करने के लिए क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं कि करंटली जो जो इश्यूज आएंगे हमें
मतलब आपको अगर पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप ये बता दो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस क्रिएट्स अ वेरी यू कैन से क्राइसिस बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर यू कैन से डेटाबेस। नंबर वन, सेंसस के थ्रू आप कर रहे हैं। दूसरा, डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, माइग्रेशन इज वेरी हाई इन द नेशन। तो माइग्रेशन की वजह से आप कैसे इसको कर पाओगे प्रॉपर। अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं ना कि सेंसस की फिगर सही होगी तब तो डिलिमिटेशन करोगे। उन्होंने डिलिमिटेशन नहीं पूछा, सेंसस का भी तो आइडिया देना है। मेनली क्वेश्चन का जो टोन है वो डिबेट के ऊपर है। डिबेट्स क्या क्या आ रही है ना, डिबेट्स ये भी आ रही है ना। अच्छा, सबसे पहली बात, डिलिमिटेशन करोगे किस बेसिस पे? कोई डेटा लेके आओगे, डेटा को उठाओगे और डिलिमिटेशन करने जाओगे। अगर आपके पास डेटा ही वैलिड नहीं है, इन द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट एबल टू रेज द वैलिड डेटा, इन द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर फेसिंग टेक्निकल चैलेंजेस डूइंग द सेंसस। पहले सेंसस करोगे फिर डिलिमिटेशन करोगे ना। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, the decision to conduct political census 2027 has reopened the debate on delimitation in India। ये बात मैं, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मैं 2024 में क्लास में मैंने बात की थी कि अभी ये सेंसस नहीं कराएंगे क्योंकि 2029 में इलेक्शंस हैं, ये 2026 में जाके सेंसस कराएंगे, जिससे कि जो भी लास्ट डेटा आएगा उसी, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है द लास्ट डेटा ऑफ टिल 2029 के इलेक्शन से पहले वही डेटा यूज करना है। तो जो डेटा आया 27 में हाथ में आएगा उसी से इलेक्शंस होंगे 29 के। और डेटा कैसा आएगा? डेटा आएगा नॉर्थ इंडिया टिल्टेड, डेटा आएगा हैवी पॉपुलेशन टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्क्यूड पॉपुलेशन टुवर्ड्स साउथ, डेटा आएगा पॉलिटिकल इंबैलेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। सो दे वुड बी एबल टू ऐड 500-800 सीट्स, 500-800 सीट्स फॉर द नॉर्थ इंडिया एंड रिड्यूस द सीट्स फॉर द, और प्रपोर्शन में लेस रिडक्शन इन द साउथ इंडिया। तो अगर नॉर्थ इंडिया 50% इंक्रीमेंट देख रहा है तो साउथ इंडिया 10% इंक्रीमेंट देखेगा, इतना ही होगा, और मोर और लेस मे भी हो सकता है रिडक्शन देखे। ये है क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली हमने सेंसस की बात की है उससे डिलिमिटेशन की डिबेट शुरू हो गई। तो सेंसस पे ही आप डिलिमिटेशन करोगे। अगर आपके पास सेंसस का ही डेटा गलत आता है तो आपका डिलिमिटेशन का मेथड भी या आउटकम भी गलत होगा। तो इसलिए हमें सेंसस को भी यहां बताना जरूरी है, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल चैलेंजेस वी आर गोइंग टू फेस in doing this census, migration challenges, technical challenges, lack of the you can say credible database, lack of the techniques, then definitely the outcome is going to be highly polarized. So with the skewed or with the less efficient census system, you are going to create a very you can say polarized delimitation. Question कह रहा है, the decision to conduct political census has reopened the debate on the delimitation in India. Discuss its various aspects. अलग अलग aspects उसके बताओ। तो political aspect delimitation के, उसके बाद legal aspects delimitation के, technical administrative aspects delimitation के, लीगल में वो अमेंडमेंट वगैरह सारा डिस्कस करें। ठीक है, अमेंडमेंट का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस में दिक्कत आएगी, इम्बैलेंस आएगा, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स आएगा। अच्छा, इस बार एक क्वेश्चन आएगा द डिक्लाइन ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, इस बार करेंगे उसको डिस्कस। भाई बिहार से गई रीजनल पॉलिटिक्स, बंगाल से गई, ठीक है, तो डेवलपमेंट वर्सेस रीजनल पॉलिटिक्स। तो अगेन क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा। तो डिलिमिटेशन से बेनिफिट क्या होंगे? सोशल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो जाएंगे, पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो जाएंगे। नाउ पीपल वुड हैव द राइट, ट्राइबल्स को बेनिफिट्स हो जाएंगे, रिजर्व सेक्शन को बेनिफिट्स हो जाएंगे। नाउ दे वुड बी एबल टू ईयर मार्क मोर सीट्स फॉर द रिजर्व सेक्शन, more seats for the tribal section, or the isolated or the individual seats for these sections. On the other hand, it is going to create more challenges for the southern India. It is going to create more challenges for the data evaluation, क्योंकि डेटा गलत होगा तो आउटकम गलत होगा। हाँ, सारा GS टाइप जा रहा है, आंसर बिल्कुल सही है। What we can do is we only have to add the scholars in this, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में यूजुअली चीजें जो हैं वो GS टाइप ही रहेंगी। हाँ, बट GS से बेटर हम कर रहे हैं। कैसे हम बेटर कर रहे हैं? जब हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो हम एक स्कॉलर की बात करेंगे, जब हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम स्कॉलर की बात करेंगे, डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो हम अम्बेडकर की बात भी करेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एक्स्ट्रा इंपैक्ट इन द आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत GS है, इसमें हम बहुत ज्यादा PSR नहीं ला पाएंगे। वही रॉल्शियन जस्टिस की बात कर सकते हो, इट विल प्रोवाइड रॉल्शियन जस्टिस, ठीक है। तो आप रॉल्शियन जस्टिस ओरिजिनल पोजीशन पे ले गया रॉल्स,
ये रोल्स का ओरिजिनल पोजीशन तो है, फिर से जा रहे हो, सेंसस कर रहे हो और फिर सीटों को जीरो से नई सीट्स क्रिएट कर रहे हो। हाँ सर इसमें कंक्लूजन में ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डाल के और एनआरएल वगैरह को एक्शन उसका ह्यूमन एक्शन बिल्कुल है, ह्यूमन एक्शन। इनफैक्ट आप ये देखो ना कि विद दी मोर, अच्छा अब एक बहुत अच्छी बात क्या होगी, जैसे आपने हना आर्डन की बात करी, यू कैन कंक्लूड विद द वीवा एक्टिवा, सॉरी वीटा एक्टिवा, वीवा कह रहा हूँ, सॉरी, यू कैन कंक्लूड विद द वीटा एक्टिवा कि बिकॉज नाउ पीपल वुड बी, दिस मोबिलाइजेशन विल हेल्प द पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सरसाइज देयर राइट। तो एरिस्टोटेलियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड हना आर्डेंस फॉर्म ऑफ वीटा एक्टिवा, तो वो आप यूज कर सकते हो कि दिस विल बेसिकली क्रिएट अ सेंस ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि नाउ पीपल विल हैव देयर ओन सीट। अभी ट्राइबल्स क्या कहते हैं, मैं नहीं देने जा रहा, मेरा तो कैंडिडेट, मतलब ट्राइबल्स, अगर एक ट्राइबल है नॉन ट्राइबल सीट में, बिकॉज ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन 2002 के बाद सेंसस डिलिमिटेशन नहीं हुआ पैन इंडिया बेसिस पे, तो करंट प्रॉब्लम क्या आ रही है, करंट प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको नॉन ट्राइबल सीट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा दिख रही है। ट्राइबल डजंट वांट टू वोट, वीटा एक्टिवा कह रहा मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा इससे, जनरल कैंडिडेट को क्यों वोट दूं मैं। दिस विल क्रिएट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हना आर्डेंट्स आइडिया वीटा एक्टिवा, दिस विल क्रिएट द एरिस्टोटेलियन फॉर्म ऑफ active participation in politics, which will definitely create a more democratic society. Last में Ambedkar डाल दो, which will envision the, which will help in establishing the vision of Ambedkar. है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ करते हैं प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चंस। इस बार इस प्रोग्राम में मैंने यही सोचा है कि इसी तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे which seems to be very generic but have a specific answer. करते हैं कोशिश। और पता है ये चीजें ना विद डिस्कशन यू वुड बी एबल टू डेवलप द मोर, जैसे जैसे डिस्कशन होता है ना वैसे वैसे कई बार हमारा जो माइंड है उस एरिया में ओपन होने लग जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब एक सीधा क्वेश्चन था इस साल, examine the constitutional provision and nature of advisory jurisdiction of Supreme Court, evaluate your answers with relevant examples। ये straightforward question था, constitutional provisions and nature of advisory jurisdiction। वही what are constitutional provision, article 143, the nature of advisory jurisdiction बता दो कैसे है, किसकी एडवाइस पे वर्क करता है, कौन एडवाइस लेने के लिए ड्यूटी बाउंड है, कौन नहीं है, सिंपल है, नो वन इज ड्यूटी बाउंड, नीदर द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू गिव द एडवाइस नॉट द प्रेसिडेंट इज ड्यूटी बाउंड टू टेक द एडवाइस। नेचर हो गया ये। Evaluate your answer. Now what are the benefits of this particular advice, the limitations of this particular advice and the way forward, how this kind of advice suits the political scenario, है ना। जैसे इस बार ली थी ना एडवाइस गवर्नर के केस में 143, तो इसलिए क्वेश्चन आ गया। एक चीज और हमने नोटिस करी कि 2A1B में क्वेश्चंस इस बार लगभग सारे करंट बेस्ड थे, सारे करंट बेस्ड थे। व्हाट वाज इन न्यूज वाज आज इन पेपर, तो इससे प्रेडिक्टेबिलिटी हाई हो गई है। तो लेट अस ट्राई टू प्रेडिक्ट इस साल के क्वेश्चंस विद द थिंग्स इन करंट। सर इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे जो इवैल्यूएटर होता है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, उनको तो कोई आईडिया नहीं होता, उन्होंने तो पेपर इवैल्यूएट नहीं किया था कि जीएस का आंसर है, बीएस का आंसर है, तो सर उनके लिए तो आंसर ही है, और वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, हमें पता चल यूनिवर्सिटी से कैसे होते हैं कि वो इतना डीपली न्यूज़पेपर पढ़े कि वो उस आंसर में किसी थ्योरी को कोट कर सकते, मतलब वन के पार्ट को वन में कोट कर सकते, वो एनआरएल को कोट कर सकते, तो सर वो उसके लिए तो डिसेंट आंसर होगा। बिल्कुल, तो जीएस टाइप आंसर भी लिखा है, अगर उसमें सारे रेलेवेंट चीजें उसमें है तो सर तब भी उसके लिए डिसेंट है, वो उस पे मार्क्स दे देगा। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, उस पे भी दे देगा। तो व्हाट वी कैन डू इज एटलीस्ट हम देखो, एक चीज ये भी होती है कि आउट ऑफ द कॉपीज ही हैज इवैल्यूएटेड इन अ डे, उस दिन सबसे अच्छे ज्यादा कंटेंट या मोर स्पेसिफिक किसकी कॉपी रही होगी। एक क्राइटेरिया ये भी होता है कई बार मार्क्स देने का कि आपसे पहले वाले, क्योंकि कंपटीशन इज विद इन द सर्किल ओनली, बाहर से तो आ नहीं रहा, तो ये भी हो सकता है कि उस दिन जो 4 कॉपीज थी दे वर राइटिंग अ वेरी जीएस काइंड ऑफ आंसर एंड द 5th कॉपी व्हिच यू गेव हैड, अभी हमने बात की हना आर्डन की, एरिस्टोटल की, हम यहाँ पे 1A ले आए, तो हो सकता है ही विल फील लाइक कि हाँ यार इसने सही ऐड किया। लेट्स टेक दिस, ये इस बार एक और लाइफ में वो ले लो चांस, इस बार वाला ये चीज ऐड करके। सर ऐसे भी हो सकता है, मतलब जैसे वो आपने पहले कहा था कि लास्ट ईयर अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चेक करें और नेक्स्ट ईयर
मतलब चंडीगढ़ चले गए, हाँ। तो अगर इलाहाबाद वालों के पैटर्न के हिसाब से वो ठीक था, हम्म, तो चंडीगढ़ वालों को कोई यूनिक लगेगा तो वो ज़्यादा भी दे सकते तब हैं, ये slightly रीज़न ये होता है ना, तभी एवरी ईयर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, अपने ही मार्क्स में वेरिएशन है, आपने देखा ही होगा। नहीं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज़ वेरी, बहुत ओपन फैक्ट है यहाँ पे। एट लास्ट व्हाट मैटर्स इज लक, बहुत मैटर कर रहा है इस एग्ज़ाम में, तो लक तो मैटर कर रहा है। दे शुड बी, मतलब उनको कुछ तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना, वो क्वेश्चंस दे के उन्हें क्या जज करना चाह रहे हैं, कुछ यूपीएससी क्लैरिटी दे कि यार हम इस क्वेश्चन से ये जज करना चाहते हैं, है ना, दिस इज अवर कंसर्न। बट ठीक है, so what they're asking, what we can do is, rather than questioning us, we can try to write questions, write answers। उनको क्वेश्चन करने से अच्छा फिर हम ये फोकस करते हैं कि कौन से आंसर्स बेटर हैं। ठीक है, 2025 के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई स्पेसिफिक डाउट और? ठीक है, सो हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, इसमें शेड्यूल है, इसमें ना डेट्स आई शिफ्ट, क्योंकि ये 8 स्टार्ट होना था, आज 10 से स्टार्ट हुआ, सो टेक्निकली ये 11 जून हो जाएगा, सर ये 11 जून हो जाएगा, मैं इसको ठीक करके दे दूंगा। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर 90 मिनट्स, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, फर्स्ट 90 मिनट्स would be devoted to the revision of the topic, revision through keywords. Next 90 minutes और 60 minutes जो भी आते हैं, depends, we would be discussing 30 years PYQs plus द क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे 10 हैं तो टोटल 10, ठीक है, प्लस न्यू क्वेश्चंस, दैट मेक्स इट 10 क्वेश्चंस, एंड देन यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे आई विल नॉट बी डिस्कसिंग वेरी डिटेल्ड, क्योंकि यहाँ मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे आई विल बी गिविंग द एक्स्ट्रा कंटेंट, स्कॉलर्स, करंट अफेयर्स, एंड देन यू हैव टू राइट, सबमिट एंड गेट इट इवेलुएटेड same day, after the class you can get it evaluated। इसमें यहाँ पे भी होगा, और जो न्यू क्वेश्चंस है ना यहाँ पे भी होगा। कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम कम है, इसलिए एक बात और है, जैसे ये हो सकता है कि इस दिन के कुछ टॉपिक्स रह जाएं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, अपने पास टाइम कम है लास्ट में, इसे 24 जुलाई 27 जुलाई हो गए, इसे हम वैसे भी ना 30 जुलाई के बाद शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोग पैनिक करोगे, कुछ नहीं होगा पूरा, इसलिए करना तो इसे पड़ेगा। तो कोशिश अपनी रहेगी जितना टाइम लगे, 2.5 3 आवर्स, और जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक तो दे देते हैं 4 घंटे, अभी रिजल्ट आ जाएगा 4-5 दिन में, फिर से रीओरिएंट हो जाओगे, और वैसे भी ना फर्स्ट टॉपिक ही है सबसे लंबा, बट इसमें एक बात है, फर्स्ट टॉपिक में रिपीटिशन बहुत हाई है। अमेंडमेंट में क्वेश्चंस उसी तरह के आए हैं, फंडामेंटल राइट्स के कुछ करंट क्वेश्चंस हैं, डीपीएसपी सेलिएंट फीचर्स करंट में है, यहाँ पर भी क्वेश्चंस अगेन दे आर रिपीटेटिव, ये तो हाईली रिपीटेटिव है। इसमें सिंगल डे में कुछ ये भी हो सकता है कोई टॉपिक यहाँ से रह जाए, जैसे यहाँ स्कोप है अपने पास, फेडरलिज्म छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड यहाँ हो जाएगा। तो आइडिया ये है कि ऑन द डे ऑफ दिस सेक्शनल टेस्ट हम ये सारी चीज़ें पूरी कर लेंगे। हाँ, करंट की पीडीएफ मिलेगी आपको, करंट का कंटेंट यहीं मिल जाएगा, एट द सेम टाइम पीडीएफ आपको एक बार ना जुलाई में, इस मंथ के एंड में पूरा पीडीएफ मिलेगा, जुलाई में नहीं सॉरी जून के एंड में, जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरा एक आपको पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा, दैट व्हाट हैज़ हैपेंड इन पास्ट 1 ईयर, और वो हम यहाँ पे ऐड करते भी चलेंगे, वो रिवीजन के लिए मिलेगा, वो आप रिवीजन में यूज़ करोगे, एफएलटीज लिखने में यूज़ करोगे, रिवीजन में यूज़ करोगे। ओके, एनी अदर डाउट? ठीक है, कल मिलते हैं फिर। 2 टाइमिंग विल बी 2 to 5, मतलब 2 to 5 आप फ्री रखो, अब आप 4:30 फ्री हो जाओ, 5:15 फ्री हो जाओ, डिपेंडिंग अपॉन।
Online, any other doubt? Yes, you have to write questions daily and submit them, yes. Because those who are having mains this year, definitely they have to write on daily basis. Those who do not have mains, I would recommend to write on daily basis, but if you want to extend this for another 15-20 days, you can extend this. But जिसको मेंस जिसका मेंस है वो तो कुछ कर नहीं सकता ना, उसको तो करने 60 दिन में. Okay, so bye everyone.